Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 13, our planet Earth. Now, in this chapter, we will study about our solar system, our different planets and how many planets in our solar system. We should also study about different landforms on the earth structure, what is the globe, and what are the other water bodies that we have earth. So students, all these points we will cover in our chapter. So look at these learning points: solar system, different landforms on earth, the earth, and water bodies. Get ready for the exercise. Identify the pictures and write their names in the space given below. Now look at the first image and identify which image is this. The image is sun. तो हम यहाँ पे fill करेंगे the sun. Now look at the second image, the stars. Now look at the third image. ये किसकी image show कर रखी है आपको? moon की, the moon. Now look at the last image. Last image आपको show कर रखी है इंद्रधनुष यानी रेनबो की. So fill the rainbow. Now let's begin the chapter with our first topic, solar system. The sun, 8 planets, their satellites and other heavenly bodies from the solar system. Our Earth is the third planet in the solar system. आप सभी को पता है सन यानी सूरज को मिला के और हमारे 8 planets यानी ग्रह और सैटेलाइट्स और अदर हेवनली बॉडीज को मिला के हमारा सोलर सिस्टम कंजर्व होता है, फॉर्म होता है. हमारा अर्थ कौन से प्लैनेट पे आता है सोलर सिस्टम में? थर्ड प्लैनेट पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है. नाउ सी द इमेज ऑफ द सोलर सिस्टम. These all are the planets, 8 planets including the sun make the solar system. This is the image of the sun. Now first planet is Mercury, second Venus, third one is Earth जिसपे हम क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, रहते हैं. नाउ फोर्थ वन इज मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ वन सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपच्यून. These all planets together with the sun form a solar system. Now students, let's read the knowing fact. The 8 planets in increasing distance from the sun area wise are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. बच्चों जो 8 planets रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इंक्रीजिंग डिस्टेंस में रहते हैं. अब आपने इमेज को शो कर रखा है, इसमें दिखा रखा है सन से इनके डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. सबसे पास हमारा कौन सा प्लैनेट होता है? मर्क्यूरी होता है. सबसे फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? हमारा नेपच्यून होता है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द अर्थ. वी ऑल लिव ऑन अ प्लैनेट नोन एज द अर्थ. बच्चों आप सब एक प्लैनेट पे रहते हैं, सिर्फ एक ही प्लैनेट पे जो है लाइफ पॉसिबल है, वो है अर्थ. It is the only planet where life exists. It is a home to humans, plants and animals. It is spherical in shape. आप सभी को पता है, ये आपको शेप दे रखी है, इमेज दिखा रखी है अर्थ की. इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है. और हमारे अर्थ पे हमारे साथ साथ प्लांट्स भी, एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं. अर्थ हैज लैंड एंड वाटर. आपको पता है अर्थ यानी पृथ्वी पे जमीन और पानी दोनों ही चीजों की अवेलेबिलिटी होती है. About 70% of the earth surface is covered with water. हमारी धरती पे कितना परसेंट पानी अवेलेबल है? 70%. That's why it is also known as the blue planet. इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. अर्थ का अनदर नेम क्या है? ब्लू प्लैनेट. बिकॉज अगर हम उसे सैटेलाइट से देखेंगे उसकी इमेज को तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का, बिकॉज 70% is covered with water. Now its land is used for growing food, making shelters and for making roads for transportation. और बाकी की जो जमीन है उस पर हम क्या करते हैं? अपनी एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स. हम लोग घर बनाते हैं या कुछ जो होती है रोड्स बनाई जाती हैं लैंड पर्पस के लिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस. मेकिंग शेल्टर्स, हम लैंड पे शेल्टर्स बनाते हैं. क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं. मेकिंग रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और सड़कें बनाते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके.
Now come to the next topic, different landforms on earth. There are different landforms on our earth like plains, hills, mountains, valleys, plateaus and deserts. बच्चों अब हमारे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स का मीन सोचे लैंड स्ट्रक्चर कि मतलब जो जमीन होती है अर्थ पे एक जैसी नहीं होती, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। लेट्स लुक एट द फर्स्ट इमेज। A plain is a flat land. Plains are thickly populated. बच्चों जहाँ पे हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे रहते हैं हम। जो प्लेन होता है वो फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाउस को बिल्ड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्लेन्स पे ही ज्यादा पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। Now look at the second image. A hill is that area on land which is higher than the surrounding land. आप देख रहे हैं हिल यानी पहाड़। जो पहाड़ होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, वो हायर अबव द ग्राउंड लेवल होते हैं। Now look at the third image. A mountain is a very high hill. बच्चों जो हिल से भी हाई होते हैं वो हमारे माउंटेन होते हैं जिसे हम पर्वत कहते हैं। Now look at the next image. A valley is a low land between mountains or hills. वैली क्या होती है, जो माउंटेन्स और हिल्स के बीच का रास्ता बनाती है या हम कह सकते हैं रोड होती है, उसे हम वैली कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है प्लेट्यू इज अ हाई लैंड विच इज फ्लैट एट द टॉप एंड प्लेट्यूज आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। बच्चों प्लेट्यू आपको शो कर रखा है इमेज में, ये हाई लैंड होता है अबव द ग्राउंड लेवल, जो हमारा टॉप से फ्लैट होता है, जिसे हम पठार भी कहते हैं। प्लेट्यूज आर आल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड। प्लेट्यूज को इसलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लैट सरफेस एट द टॉप। नाउ लुक एट द लास्ट इमेज। अ डेजर्ट इज अ लार्ज हॉट एंड ड्राई एरिया कवर्ड विद सैंड। जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है वो बड़ा होता है, गर्म होता है, ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसकी वजह से जो यहाँ की सैंड होती है वो ड्राई होती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर बॉडीज। Water bodies are the areas on the surface of the earth covered with water. Water bodies वो सारा एरिया होता है जो अर्थ सरफेस का पानी से कवर्ड है, वो हमारा वाटर बॉडी कहलाया जाता है। These water bodies are of different sizes. Water bodies साइजेस के बेसिस पे और इनका जो वाटर सोर्स है वो कहाँ से आता है उसके बेसिस पे इन्हें हमने कैटेगराइज कर दिया है। पॉन्ड्स में, lakes में, rivers, seas and oceans are examples of water bodies. Now we will study about in detail of each water body. Start with pond. A pond has land around it on all sides. Pond यानी तालाब। आप देख रहे हैं, look at the image of the pond. Here is the water in the middle and all surrounded by a land. इसमें क्या होता है, बीच में पानी होता है और चारों तरफ उसकी जमीन होती है। It is a small water body mostly found in villages and outside cities. यानी बच्चों आपको अगर तालाब देखना है, पॉन्ड देखना है तो आप विलेजेस में देख सकते हैं, या जो सिटीज के आउटर एरियाज होते हैं वहां पे पॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है लेक। लाइक अ पॉन्ड, अ लेक इज ऑल्सो अ वाटर बॉडी विद लैंड अराउंड इट ऑन ऑल साइड, बट इट इज लार्जर एंड डीपर देन अ पॉन्ड। बच्चों पॉन्ड भी ऐसे ही होता है, पॉन्ड की तरह ही लेक होता है, नदी होती है, इसके भी चारों तरफ सराउंडिंग में लैंड होती है, बल्कि ये क्या होता है, जो हमारा लेक होता है वो पॉन्ड से बड़ा होता है, डीपर यानी गहरा होता है, ज्यादा हमारी यहाँ पे वाटर डेंसिटी होती है। लुक एट द इमेज ऑफ लेक। नाउ नेक्स्ट आता है रिवर। अ रिवर इज लार्जर देन अ लेक। जो रिवर होती है वो लेक से भी बड़ी होती है। Unlike in the case of a pond or a lake, water in a river flows from one place to another on the land. बच्चों पॉन्ड और लेक की तरह जो वाटर होता है रिवर का, वो फ्लोज क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोज करता है। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द रिवर। नाउ नेक्स्ट वाटर बॉडी आती है सी। A sea is a very large water body that is often partially enclosed by land. सी क्या है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी हमारी। सबसे पहले पॉन्ड आता है, फिर लेक आती है, फिर रिवर आता है, उसके बाद आता है सी यानी समुद्र, जहाँ पे सारी रिवर्स जाके मर्ज होती हैं। द वाटर इट कंटेन्स इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मोस्टली अ सी इज कनेक्टेड टू एन ओशन। बच्चों जो हमारा सी यानी समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, उसमें नमक होता है, खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते। और हमारे अर्थ प्लैनेट पे सबसे ज्यादा हमारे क्या है, सी है, सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। जो ड्रिंकिंग पर्पज का वाटर है वो कम अवेलेबल है। बच्चों जो सारी सी है वो कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, ओशन यानी महासमुद्र से। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ओशियन।
Oceans are the largest water bodies on the earth. They are not enclosed by a land. Oceans बच्चों enclosed नहीं होती land से, उसे cover नहीं कर सकता land या उसे surround नहीं कर सकता. Oceans also have salty water. Oceans की भी बच्चों salty water होगा क्योंकि सारी ही समुद्र का पानी जाके ocean में merge हो रहा है. They cover about 2/3 of the earth surface. बच्चों हमारा जो 2/3 एरिया है अर्थ का वो ओशन की वजह से कवर्ड है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट बन गया है. ये हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ पे 70% वाटर अवेलेबल है. नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द ओशन. नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. वाटर कवर्स अबाउट 74% ऑफ द अर्थ सरफेस. बच्चों हम सारे वाटर को इंक्लूड कर लें तो हमारे अर्थ सरफेस पे 74% जो है वाटर से कवर है. पहले हमने 70% पढ़ा था बच्चों, वो लिक्विड फॉर्म में है. 74 में हमारे स्नो फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लेशियर्स फॉर्म में भी हो सकता है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वी शुड कंजर्व वाटर एज मच एज वी कैन. बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाना चाहिए. नेवर वेस्टेज ऑफ वाटर. बच्चों अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो हम अर्थ पे सर्वाइव कैसे करेंगे? बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल सोर्स फॉर आवर सर्वाइवल. Now students, let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. Is our earth is the third planet on the solar system. सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ जो है थर्ड नंबर पे आता है. द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ 70% ऑफ वाटर. हिल्स आर हायर देन प्लेन्स. हिल्स जो होते हैं वो हाई होते हैं प्लेन से. अ रिवर इज अ लार्ज देन लेक. रिवर जो होती है लेक से बड़ी होती है. Oceans are the largest water body on the earth. Oceans यानी महासमुद्र जो होते हैं वो 2/3 एरिया कवर करते हैं अर्थ पे और सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी मानी जाती है. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.